Good morning, guys. Good morning, student. Good morning, sir. Good morning. Yes. So yesterday I have given you all this diagram, right? And I'm sure that every one of you have drawn this, completed this task. Yes, sir. Yes. So I'm going to ask one by one to a few students to show me that how they drawn this diagram. Okay. Why I'm why I am giving you this diagram? Because I want you to understand the 2D drafting at least on the ANSYS Workbench Design Modeler. Okay. Because ANSYS do have the facility to you can bring the other CAD platform designs as well to do the analysis. But let's say that you have a simple model, then you are not going to design that simple model onto the ANSYS. It's very time. You are working in an industry and they don't have any other softwares. They only have the ANSYS Workbench. Okay, let's suppose for a moment. So you don't have the other platforms, other design platform to draw or draft or design or model something. You have to do on the ANSYS Workbench. That's why I am teaching you guys how to design and draft, how to model. मॉडलिंग में आपको थोड़े दिन बाद बताऊंगा कि 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 3D मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं, असेंबली कैसे क्रिएट होती है यहाँ पे. ठीक है. Okay, so first of all, I will ask one by one to the random students that they have done the work or not. Every one of you have done this? Every one of you have done this?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So just share your screen and show me, and I will ask by myself with every student to show me the screen how they drawn this diagram. Okay. Okay. Ritesh Kumar. Ritesh, show me. Ritesh, share your screen and show me. हेलो सर। Yes, Ritesh. सर हम ड्रॉ नहीं कर सके सर, हम मतलब कल इंस्टॉल ही किए सर सॉफ्टवेयर को। Oh, okay, all right. Okay, रितेश, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे 2D Yes, पे, sir. कोई इशू आएगा तो आप मुझसे फिर से पूछ लेना, ठीक है? मैं फिर से ठीक है बता सर, दूंगा। ड्रॉ कर लेंगे सर, आपको भेज देंगे सर। ओके, ऑल राइट। और फाइल आपको गाइस यहीं पे चैट बॉक्स में शेयर कर देना है मुझे, जब आप बना लेते हो। जब अभी मैं आपको कोई असाइनमेंट दूंगा जब, तो आपको उस फाइल को इस चैट बॉक्स में यहाँ पे इस फाइल को सबमिट कर देना है। यहाँ दिख रहा है ना आपको चैट बॉक्स में फाइल डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है? यस सर। यस। ओके, रेशम कुमारी। सर इंस्टॉल नहीं किए हैं। आपने इंस्टॉल नहीं किया है अब तक, तो आप कब करेंगे रेशम? बिकॉज एनसीएस पे प्रैक्टिस करना जरूरी है। सर आज कर लेंगे। तो कब होगा बताइए। आज कर ओके, आज कर लेंगी तो आप मुझे कल दिखाएंगे, ठीक है? और फाइल मुझे सबमिट करोगे। सर यस सर। सर ओके। सर फाइल Because कहाँ one- और कैसे सबमिट करना है? देखो, मैं दिखा रहा हूँ अभी आप लोगों को, ठीक है? ये आपका चैट बॉक्स है, दिख रहा है? चैटिंग का ऑप्शन क्लिक करते हो ना आप, टाइप करने के लिए कुछ। यस सर। ना इसमें सर, फाइल का स्क्रीन ऑप्शन पे दिख रहा है? स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा सर। स्क्रीन दिख नहीं रहा आपको? स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा। स्क्रीन पे सिर्फ डायग्राम दिख रहा है आपको? यस सर। अब दिख रहा है? ओके, मैं बता देता हूँ आपको। फोकस, हो सकता है आपको इंटरफेस ही दिख रहा होगा सिर्फ, और जूम नहीं दिख रहा होगा। तो जो आपका चैट बॉक्स है जिसमें आप टाइप करते हो, वहां पे आप देखोगे राइट साइड में फाइल का एक ऑप्शन आ रहा है। फाइल अपलोड करने का एक ऑप्शन आता है चैट बॉक्स में। उस फाइल को अपलोड करने के ऑप्शन को आपको क्या करना है? क्लिक करके फाइल अपने ड्राइव में जाना है, फाइल को सिलेक्ट करना है, और जहाँ भी आपने फाइल रख रखी है सेव करके उसको अपलोड कर देना है यहाँ पे। Sir, this option is not showing in mobile phone. मोबाइल फोन इट इज नॉट शोइंग। Yes, sir. यस सर। Okay, then download the Zoom app in your laptop then. Okay, to submit the file, download the Zoom app. Few MB it will take, few MB data. And to upload the file, open the Zoom app in your laptop and then submit it. All right? ओके सर। Yes. Guys, you all are going to be engineers, okay? Try to find the solution for every problem, not to create the problem for every solution, okay? You are unable to do it in a way, Hello. another way. Yes, who is it? Just first raise your hands, guys. Who have any sort of problem? Raise your hand and then talk to me, okay? Don't turn on your mic without my permission, because it creates so much noise, guys. Now tell me who has the doubts. Yes, Keshav, tell me. सर हमारे वर्कबेंच में टूल बॉक्स नहीं आ रहा है सर। आपके वर्कबेंच में टूल बॉक्स आया ही नहीं?
नहीं सर। जो कल प्रॉब्लम आपको हुआ था, राइट? जी सर। तो उसके लिए आपने सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल किया? यस सर। फिर से इंस्टॉल किया आपने? यस सर। फिर से डाउनलोड किया आपने सॉफ्टवेयर? सर उसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके फिर से उसके सेटअप को रन किए तो नहीं आ रहा फिर भी। जब आपने रन किया था तो इंटरनेट कनेक्शन ऑन था? यस सर। एक्चुअली होता क्या है केशव कि जब आप एक बार ट्रबल क्रिएट हो जाता है, यस सर। ठीक है, तो फिर से आपको वेबसाइट से ही करना पड़ता है। बट मैं आपको अब रेकमेंड करूंगा कि आप उसकी वेबसाइट से ना करें, आप किसी और प्लेटफॉर्म से कर लें, ठीक? ओके सर। ठीक है, गो टू यूट्यूब और टाइप करो वहां पे, आपको वहां पे यस आशुतोष। यस सर, देयर वाज सम प्रॉब्लम। ये डायग्राम में जो है, ये राइट साइड का जो इंक्लाइनेशन लेना है वो कैसे लेना राइट साइड पे जो इंक्लिनेशन लेना है, है? यस सर। ये इंक्लिनेशन, यस सर। ये ऐसे लेना है कि एक लाइन यहाँ से स्टार्ट करनी है बनानी और एंगल पे ले जाना है, और फिर डायमेंशन देते टाइम इनके बीच में एंगल दे देना है, ऐसे बनाना है। सर वो एंगल लेने में ही प्रॉब्लम आ रहा था सर। लेफ्ट साइड का तो हो गया, सर्कल्स के सेंटर से लाइन को ऊपर ले गए और इसकी लाइन को बढ़ा दिए, वहां से एंगल लेके फिर ट्रिम कर दिए। बट ओके, राइट साइड में नहीं हो पा रहा वैसे। राइट साइड में नहीं हो पा रहा था, है ना? यस सर। ओके, कोई नहीं, अभी मैं आपको आपके सामने ड्रॉ करूंगा। ओके, यस सर। कैसे आप लोग 2D ड्राइंग करोगे वो मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। और कुछ प्रॉब्लम था सर। यस, बोलो। सर मैं जैसे डायग्राम को बना रहा हूँ, उसके बाद मैं उसको बंद कर दे रहा हूँ, सेव करके छोड़ दे रहा हूँ हाफ पोर्शन पे ही। लेकिन फिर से मैं जब उसको फिर से वही डायग्राम को हाफ पोर्शन पे मेरे को ये करना है, फिर से हाफ पोर्शन को एडिट करके फिर बनाना है, तो वो डायग्राम को इंसर्ट कैसे कराएंगे? आपने जो डायग्राम सेव किया है तो यस सर। प्रोजेक्ट को आपको सेव करना पड़ेगा पूरे। यस सर, प्रोजेक्ट को तो मैं जैसे कट करते समय उसको तो सेव तो कर लिया, लेकिन सेव फिर करने का उसको। तरीका मैंने बताया था, प्रोजेक्ट कैसे सेव करते हैं। यस सर, सेव एज से। ठीक है, तो बस उसी तरीके से अगर आप प्रोजेक्ट खोलोगे तो वापस आपकी ड्राइंग वहीं पे रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। फिर वो नहीं हो पा रहा था। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे करना है, ठीक है? ओके सर। यस, एनीवन एल्स? यस अनुपम, टेल मी व्हाट इज इट? अंकित कुमार? Hello, यस hello. अंकित, यस अंकित। Sir, I have completed your work, but sir, there is an error message which is coming in my workbench. Error Hello. message? Yes, error message, right? Do I share my screen? Sir, Okay, do I share my share your screen? screen, share your screen, show me. Is it visible, sir? Not right now. Excuse me, sir. Yes. Sir, ऊपर जो सर है जो Sir, is it visible? Yes, now it's visible. Sir, here, second error, failed to read from an IPC port, the pipe has been indented. This is the error message. Okay, so you drawn the job. Yes, sir, I have drawn. Let's see. I have drawn this on the answers. Geometry in. Show me the geometry. Geometry. Okay, sir. Yes, it is correct. Okay, it is correct geometry. Yes, sir. Good. So, but sir, why this geometry.
Close this geometry. Close. Yes. Do I close it? Yes, yes. Close this design modeler. Okay, sir. Close. Yes. There error And message. this error message is showing. I will show you later why this error message is showing, because you have drawn a 2D model. You have drawn a 2D drafting. Okay. But you have not changed the properties of this analysis system. And I have not teach you guys how to change the properties of the analysis system, because when you are doing 2D analysis, you have to convert your analysis system to 2D, and when you are doing 3D analysis, you have to convert it to, again you have to bring it back to 3D. By default it is always on 3D model. Okay, it is always on 3D mode. But if you are doing a 2D analysis, then you have to convert it to 2D analysis. Now you have drawn a geometry. Software has detected that you have drawn a 2D geometry. That's why some error appears like this. Sometimes it will come with another language. Okay, so I will show you how to change the analysis system from 3D to 2D. Okay. So there is one more problem, sir. Yes, tell me. Where did the geometry goes? Where does it save? Hello. Geometry data is saved. Where does it save? Geometry data. Because Yes, I haven't find it. That I geometry open data. from the. Hello. That geometry is feeded. That geometry is feeded in your design modeler environment, and that is stored in your project overall. Okay, that geometry is saved in your project with whole of your project. Okay, whenever you open the project, that geometry will appear. Yes, sir. Yes, Law Prakash. हेलो सर, कल Yes. हमने बनाकर सेव किया था सर, लेकिन ओपन नहीं हो पा रहा है सर। बना के आपने सेव किया था? यस सर। ओके, तो शेयर करो स्क्रीन। करिए। सर विजिबल? यस सर मैंने यहाँ पे सेव किया था सर, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। तो सर ये ऑप्शन आ रहा है सर। leave it, let me read it. Okay, रहने दो, मुझे पढ़ने दो। रुक जाओ। No, don't delete it. Okay, click on unlock option. Now open your geometry. सर प्रॉब्लम 1 नाम से मैंने सेव किया था, मगर यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है मेरा सर। हाँ, तो आपकी ज्योमेट्री यहाँ दिख रही है, राइट? बनी हुई है ना? यस सर। राइट क्लिक करो। ओपन करेंगे सर। राइट क्लिक करो ज्योमेट्री पे। यस सर। एडिट ज्योमेट्री इन डिजाइन मॉडल, पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो। ओके सर।
the Now, the problem is at the time of saving, जब आप save कर रहे थे, maybe some sort of problem arised at that time. Project was not properly saved. आपने मैसेज पढ़ा नहीं सही से, मैसेज में क्लियरली लिखा हुआ था कि जिस समय आप इसको सेव कर रहे थे या फिर सॉफ्टवेयर क्लोज कर रहे थे तो शायद सेविंग में कोई इशू आ गया होगा. ओके सर. अभी आपका कोई और एनसिस वर्कबेंच इसके अलावा भी खुला हुआ है? यस सर. बहुत सारे खुले हुए हैं ना, सबको बंद कर दो. क्लोज एवरीवन. ओके सर. देखो कितने सारे सेशन खोल रखे हैं आपने एनसिस वर्कबेंच के. ऐसा नहीं करना है. एक वक्त में एक ही एनसिस वर्कबेंच चलेगा. ठीक है. ओके सर. आई अंडरस्टैंड. टर्न ऑफ योर शेयरिंग. ओके. Yes, Ankit. Hello. Sir, there is a problem with me. When I open the file from my drive, Yes. it means it has an error something. While I open the workbench first and then after I open the file, then there is no error. Why does it so? Maybe check that you may have opened the so many ANSYS workbench interface, maybe. And when you save the project, guys, be careful that you save it properly. Okay. Sometimes it happens that without saving the project properly, it creates few problems when you are opening it. And if you want to open a project, the right procedure is, right method is, first open the workbench. Okay, first open your software. Then from that software, open your project. Don't jump to the file itself in your drive and double click on it and try to open the software. Okay, the correct procedure is open the software first, because when the software runs, it takes a little bit of time, you know that, right? To open the software. So the software, try to run properly with your system, and it detects your hardware properties and all. Then it establishes its interface on your system. Then open the project files that you have saved. Yes, Sanjeev. I have completed. Hello, sir. संजीव, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, बहुत स्लो आ रही है. Hello. Yes. Sanjeev, put your question in the chat box. Sir, I have completed the figure, sir. Okay. But sir, I am using Zoom in mobile phone, so can I share my photo? So check in the chat box of your smartphone whether you have the facility to No, share sir, the there file. is no any option for. So download the Zoom app in your laptop, or you can share the file by opening the Zoom website. Sir, see, can I share a screen? Okay, we will see the screen procedure now. I have to move ahead. Okay. Okay, sir. Yes. Let me draw the geometry. Any one of you have any problem related to creating the geometry, or should I show you that how to create that? No, sir. कोई एक बोल दो कि हाँ सर क्रिएट करना है तो मैं करूंगा, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा.
सर मैंने क्रिएट किया है सर, जो अभी प्रॉब्लम आ रही थी सर, वो Sir, जूमिंग का। can you see my figure, sir? Yes, it's correct. Okay, sir. Sir, but there is no any movement in when we try to give any angle between two lines. The line is constant, no any movement is there. Because you already fixed your line, that's why you cannot move it now. So, sir, if we give Okay, stop sharing your screen. And yes, Anuj, tell me, what is it? Yes, sir. Sir, after creating the geometry, when we want to give their exact dimension, then there will be size deform. Okay, Hello? size deformation happens, right? Yes, sir. Yeah, that's because you have to start from the beginning, giving the dimension. You have to Yes, work sir. on the dimension from the very beginning, okay? Yes, sir. And you have to keep moving on making the geometry, and on every step you are going to fix it. You are going to give the dimension on every step so that your geometry will be fixed. Got it? No, sir. After completing the geometry, then we will add their dimension. And view details icons, I want to fix the or put their exact dimension, then their size will be defined. Okay, can you show me? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, look your V5 and V3. Why V5 and V3 are of different dimension? V5 is your 73 meter and V3 is your 69 meter. It's wrong. Yes, Okay. sir. Actually, when we want to change their dimension, then their size will be deformed. So, actually, sir, here is H4. I want to change their size. Exact size is 100, sir. Okay. Yes, sir. It shift from only positive x direction. Okay. Why not, So sir? on the top of your geometry, let me show you. You have not given the dimension of the upper areas, upper flat lines. Look at the upper horizontal lines. The one is on your left and the one is on Yes. your right. There, sir. You have not given the dimension for them. Why? Right? You have not given the dimension for Yes, them. Yes, sir. Now do one thing. Give the dimension from the axial position, from the y-axis, for the lines V5. The V5 line is not defined from the axial position. Okay. And then upper horizontal lines, upper two horizontal lines, give it the dimension to itself. You want me to show you? I will show you quickly. Guys, turn off your mics, please. Yes, Dikshit, tell me. सर अगर ये एक्सेस को ड्राइंग में इंक्लूड करता है तो हो सकता है सर सॉल्व हो जाएगा। और एक्सेस को ड्राइंग से बहुत दूर कर रखा है सर। एक्चुअली में हाँ, ये
सनोज ने जो ड्राइंग बनाया है वो सनोज आपकी जो ड्राइंग है वो एक्सिस से इतना दूर क्यों है? आपने एक्सिस पे क्यों नहीं बनाया है इसको? बिकॉज आपकी जो एक्सिस है वही तो फिक्स्ड रेफरेंस है ना, तो आपको वहीं से बनाना चाहिए था। आप इतना दूर क्यों आए? एक्सिस से इतना दूर क्यों? व्हाट वाज द रीजन? सर एक्चुअली सर उसको साइड कर दिए हैं, देखने में सही लगता था इसलिए सर। नहीं, वो एक्सिस वहां पे इसीलिए नहीं है कि वो आपके स्क्रीन को खराब कर रहा है, वो इसीलिए है क्योंकि वो एक फिक्स्ड रेफरेंस है, उसके रिस्पेक्ट में आप डायमेंशंस दोगे। ठीक है, ज्योमेट्री बनाने में रेफरेंस की जरूरत पड़ती है हमेशा, और रेफरेंस आपका ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज द फिक्स्ड रेफरेंस। मैंने आपको कल दिखाया था कि आप इस फिक्स्ड रेफरेंस को डिलीट करना चाहोगे तो ये डिलीट नहीं होगा, राइट? यस सर। यस, तो ये इसीलिए है ही यहाँ पे कि आप इससे इसके रेफरेंस में बनाएंगे। अब आपने इसको छोड़ दिया तो अब आपकी ज्योमेट्री देख लो कैसी हो गई है ना? क्या सर ये मिड में जो सेंटर से, सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है वर्टिकल लाइन, क्या उसको रेफरेंस नहीं बना सकते सर? उसको रेफरेंस आप कैसे बना सकते हो? वो खुद ही फिक्स नहीं है, उसकी डायमेंशन तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से फिक्स नहीं है, तो वो रेफरेंस कैसे होगा? अगर उसको फिक्स कर दें तो सर हो सकता है। यस, उसको फिक्स कर दो तब हो जाएगा, ओके सर, है ना? थैंक यू। यस सर। हेलो यस, एनीवन एल्स? सर, कल इंस्टॉल कर रहे थे, वही क्रिटिकल एरर प्रॉब्लम शो कर रहा था, वो क्यों हो रहा है सर? क्या हो रहा है दीक्षित? जब इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर सर तो क्रिटिकल एरर लिखाता है। तो जिस समय आपने इंस्टॉल किया वेबसाइट से आप कर रहे थे, राइट? नहीं सर, उस टाइम नेट ऑफ था, पहले डाउनलोड करके रख चुके हैं हम साइड। नहीं, तो मैंने आपको बताया था ना दीक्षित, आपको सारा काम ऑनलाइन करना है, नेट कनेक्ट करके करना है, डाउनलोडिंग भी इंस्टॉलेशन भी। ठीक है सर। ठीक है दीक्षित, मैंने आपको जो वेबसाइट दिया गाइस आप लोगों को, वो लाइसेंस वर्जन वाली वेबसाइट है, वहां से आपको लाइसेंस भी प्रोवाइड होता है स्टूडेंट वर्जन का। तो आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के, बिना उनकी जानकारी के, उनके सर्वर की जानकारी के बिना आप काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप दूसरे प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर लो सॉफ्टवेयर, तो आप बिना नेट कनेक्शन के चला लोगे। ठीक है, Sir, I have used it without internet connection various times. वो आपने यूज कर लिया, लेकिन आप डाउनलोड और इंस्टॉलेशन आपने कैसे किया ये बताओ मुझे। वो इंस्टॉलेशन के टाइम में इंटरनेट यूज किया था। ऑन था ना? यस सर, उसके बाद जब वर्कबेंच ऑन कर लिया उसके बाद से इंटरनेट, विदाउट इंटरनेट यूज कर रहे तो वो होता है किसी सिस्टम में चल जा रहा है, किसी में नहीं चल रहा है। They have the knowledge about it, what is the issue, but at the time of installation you have to connect the internet. Now anyone else? Anyone else want to ask anything else? Yes, Mangalam. Hello. Yes, Mangalam, I can hear you. Yes, sir. How to take exact dimension while drawing, like in AutoCAD or Autodesk Inventor? How to give the exact dimension of sketching while drawing? Yes, start giving the dimension from the axis, as I told you before. Right now. Yes, sir. Start giving the dimension from the axis, fixed any one of your entity with respect to your कोऑर्डिनेट सिस्टम। अपनी एक्सिस, आपकी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस थी उसके रिस्पेक्ट में किसी एक ज्योमेट्री को फिक्स कीजिए पहले, उसके बाद किसी एक लाइन को, किसी एक कर्व को फिक्स करो, तब फिर ज्योमेट्री की डायमेंशन देनी स्टार्ट करो, तो वो फिक्स रहेगी। और आपको अंदाजा लगा, अगर आप में से कुछ लोग को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। कितने लोग हैं जिनको जो अग्री करते हैं कि करके दिखाना है? अग्री करने वाले हाथ राइज करें और नहीं करने वाले वो कुछ ना करें। वोटिंग हो रही है, मैं देखता हूँ कितने लोग हैं तो मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है,
Okay, that's enough. Okay, all right, that's enough. I am drawing. Okay, I am drawing, guys. Let's open the ANSYS software. Now you guys can lower your hand. Okay, guys, now I am drawing and you just keep focused. Okay, what I am drawing, just keep focused, and any problem arises, just raise your hand first so that I will know that you have the problem. Okay, now मैं drawing start कर रहा हूँ, just focus. आवाज इसलिए नहीं आ रही है that because I am not speaking. I want you to focus on the things, okay, not on my voice. Whatever I am doing, focus on the thing. Sir, your display is not showing well. Now you can see it. Can you see it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. तो आपको जैसे ज्योमेट्री में दिख रहा होगा,
कुछ तो नहीं करना, क्या करना? यस रंजन। यस सर, मेरे में डिजाइन बॉक्स शो नहीं कर रहा है सर, ये स्केचिंग टूल बॉक्स सर। स्केचिंग टूल बॉक्स शो नहीं कर रहा है। रीसेट नहीं किया आपने? रीसेट किया? रीसेट सर, किसको सर रीसेट? कैसे, क्या शो कर रहा है टूल बॉक्स की जगह पे? टूल बॉक्स की जगह पे सर डिजाइन 1 शो कर रहा है सर। तो जैसा कल किसी और स्टूडेंट को आ रहा था, राइट, इंटरनेट हाँ कनेक्शन की सर, वजह से। हाँ सर। हाँ, तो मैंने बताया ना आपको फिर से इंस्टॉल करो, अदरवाइज आप दूसरे प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करो सॉफ्टवेयर। ओके सर। हाँ, क्योंकि जब आपने इसको बिना इंटरनेट कनेक्शन के यूज किया किसी टाइम। नहीं सर, अभी तक तो इंटरनेट कनेक्शन, अभी जस्ट मैंने इंस्टॉल किया सर, और उसके बाद ये तुरंत रन कराया सर, तो ये टूल बॉक्स नहीं आ रहा, बाकी सब सर टूल बॉक्स में टोटल ये शो कर रहा है सर, उसके बाद ये डिजाइन टूल बॉक्स नहीं शो कर रहा है सर। जैसे प्लेन में हम लोग यूज करते हैं ना सर, ये 2D प्लेन के लिए एक्सिस, वो नहीं आ रहा है सर। शो मी द स्क्रीन, शो मी द स्क्रीन। यस सर। सर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सर, यू कैन नॉट स्टार्ट स्क्रीन शेयर व्हाइल अदर पार्टिसिपेंट Yes, इज शेयरिंग। yes, now you can share your screen. ये सर। सर इज इट विजिबल? सर हेलो सर। Yes, show me, Ranjan, show me. सर नहीं हो पा रहा सर, एक्चुअली लैपटॉप में सर ये जूम ऐप नहीं है सर। नहीं, मोबाइल से ही आप दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। Sir, he has opened a space clam. हाँ, वही मैं देख रहा था कि आपने स्पेस क्लेम खोल रखा है, ठीक ये है। सर। तो इसको बंद कीजिए, मैंने इसको खोलने के लिए बोला ही नहीं आपको। अब आप स्पेस क्लेम में टूल बॉक्स ढूंढ रहे हैं, कैसे होगा? ये रहा आपका टूल बॉक्स। ये सर। अब आप अपनी ज्योमेट्री पे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक किया सर, ये न्यू डिजाइन मॉड्यूलर ज्योमेट्री पे क्लिक कीजिए। ओके सर। अब आप पहुंचेंगे डिजाइन मॉड्यूलर पे डिजाइन करने के लिए। गॉट इट? यस सर। यस। सर नहीं आया सर। आएगा आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम खोल रहे हो आप। आप इन कहीं पे भी वाइट स्क्रीन पे, वहां पे कहीं पे भी एक बार क्लिक करो, वाइट स्क्रीन पे कहीं भी। हाँ, वेट, डिजाइन मॉडलर ओपन हो रहा है, ठीक है, वेट करो। ओके सर। थोड़ा टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम खुल रहा होगा अगर तो।
गया सर। Yes, now you can design here. Okay, now turn off your screen. Now guys, can you see the screen? Yes, sir. Okay, focus. I am drawing, right? So as you can see, जो आपकी ये जो आपकी ये angular line है, जो आपकी ये angular line है, ये 25 डिग्री पे है, right? Horizontal line से, और इसका जो एक end है, वो center से 40 है, और इस तरफ एक end center से 35 है, okay? एक तरफ 40 है, एक तरफ 35 है, यानी एक तरफ का पोर्शन मोटा है, एक तरफ का पोर्शन पतला है, समझ रहे हो आप? नाउ यस सर। जो हाइट है ज्योमेट्री की वो कितनी है? 45, और टोटल विड्थ कितनी है? 100 टोटल विड्थ है। तो 100 विड्थ है तो आधा आधा बांट देंगे इन दोनों लाइंस में, तो 50-50 हो जाएगा, राइट? यस सर। यस। तो क्या करेंगे, पहले एक पॉलीलाइन से स्टार्ट करते हैं, सेंटर से बनाना। पॉलीलाइन लेंगे, पॉलीलाइन को सेंटर से बनाएंगे यहाँ तक, उसके बाद ऊपर हाइट लेके जाएंगे वर्टिकल, ठीक है? वर्टिकल ऊपर हाइट लेके जाएंगे, और नाउ एक और हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ तक, और एक नीचे लेके आओ इस तरह से, ये like this. Okay, now open the geometry and look at this line. Okay, look at this line. ठीक है? तो या तो आप यहाँ से लाइन से स्टार्ट कीजिए, या फिर आप एक काम करो, आप इस सर्कल को आप अपनी सेंटर पे बना लो। दो काम आप कर सकते हो, ठीक है? या तो आप अपनी लाइन सेंटर से स्टार्ट करो, या आप अपनी सर्कुलर पोर्शन को सेंटर से स्टार्ट करो। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, जो आप चाहो, ठीक है? अकॉर्डिंग टू योर नीड। नाउ आपको अगर दिख रहा होगा तो आपको जो आपकी जो ये हाइट है, ये लाइन, ये यहाँ से कितना है? 20 पे है, राइट? ये लाइन। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ये लाइन पे ले जाके इसको छोड़ रहा हूँ, दैट्स इट। यहीं पे इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, और मैं इसको ओपन एंड छोड़ देता हूँ कर्व को अपने। तो मेरी इतनी कर्व आपको दिख रही है? आप लोगों को दिख रहा है इतना सा कर्व गाइस? यस सर। Yes, sir. Okay, okay, good. Now, अब जो ये चीज मैंने बनाई है, इसको आप प्रॉपरली डायमेंशन दे दो, प्रॉपर डायमेंशन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हो जाएगी? ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी कितनी हो जाएगी? इट विल बी योर 50। अगर आपकी ये पूरी 100 है तो ये यहाँ से यहाँ तक 50 हो जाएगी। और हाइट कितनी हो जाएगी बता सकते हो? हाइट 45 दे रखा है, हाइट आपको 45 दिया हुआ है, तो V2 आप 45 डालो। हाइट आपने दे दी 45 mm, राइट? नाउ ये जो पॉइंट है, इस लाइन की ये जो पॉइंट है, ये यहाँ से कितनी है? 40 आपकी सेंटर से। तो सेंट्रल एक्सिस से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोगे आप किसकी? इस पॉइंट की, और हॉरिजॉन्टल इसकी। ये कितनी है? H3 कितनी है? 40 दे दिया मैंने, कर दिया फिक्स। अब आपको क्या देना है? लुक, अब आपको क्या देना है? देखो ध्यान से, आपकी जो बड़ी वाली सर्कल है, बड़ी वाली जो सर्कल है, उसकी रेडियस कितनी है? बड़ी वाली सर्कल की रेडियस कितनी है? 15 रेडियस है। तो यानी कि इस एक्सिस से इस पॉइंट की ये रेडियस डिस्टेंस है ना,
Yes, sir. कोई बता सकता है इस एक्सिस से इस पॉइंट की कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? 15 होगी 15, sir. अगर इसकी रेडियस 15 है तो, क्योंकि ये रेडियल डिस्टेंस है। तो अब मैं फिर से एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दूंगा, किसकी, कौन सी पॉइंट की, इस पॉइंट की इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी, 15। तो H4 मेरा कितना हो जाएगा, 15। समझ में आया, क्लियर है? यस सर। H4 मेरा ये पॉइंट फिक्स हो गया, ये पॉइंट फिक्स कर दिया मैंने। तो अब क्या फिक्स करना है मुझे, ध्यान से देखो। आप अगर ध्यान से देखोगे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ऊपर वाली लाइन से कितना है नीचे, 20, क्योंकि मैंने ऊपर वाली लाइन को पहले ही फिक्स कर दिया, अगर आप ध्यान से देखोगे। और एक और चीज बता दूं, मैं आपको पहले भी बताया था कि जब आपकी ड्राइंग पूरी फिक्स हो जाती है तो उसके कलर जो है ब्लू हो जाती है, ठीक है? ड्राइंग कलर विल बिकम ब्लू व्हेन इट इज कंप्लीटली डिफाइंड। तो आपको दिख रहा होगा ऊपर वाली लाइन, ये लाइन सब ब्लू हो चुकी है, बट ये लाइंस ब्लू नहीं हुई है ना? दिख रहा है आप लोगों को क्लियरली? यस सर। यस। तो ऊपर वाली लाइन मैंने ब्लू हो गई है, क्यों? क्योंकि मैंने उसकी डिस्टेंस जो है यहाँ से दे दी है, बॉटम से। कितना, V2 कितना है, 45 mm। तो अब आप ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी डिस्टेंस इस लाइन से दोगे। तो वर्टिकल डिस्टेंस लो, इस लाइन को सेलेक्ट करो और इस लाइन को सेलेक्ट करो, और फिर आप V5 की डिस्टेंस दो। V5 कितना है, 20 दे रखा है। जैसे ही आप 20 फील करोगे तो देखना आप कि ये लाइन आपकी ब्लू हो चुकी है। दैट मीन्स ये लाइन आपकी अब डिफाइंड हो चुकी है, राइट? इस लाइन को आपने डिफाइन कर दिया। अब आपको एंगुलर डिस्टेंस देना है, दैट्स इट, एंगुलर डिस्टेंस, दिस एंगल। ये एंगल देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस एंगल डायमेंशन लेना है, और इसके बीच की क्या करनी है आपको, एंगुलर डिस्टेंस देनी है। गॉट इट? लेट मी चेक द एंगुलर डायमेंशन। कहाँ के बीच की ग्रैब कर रहा है। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा ग्रैब करो, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा ड्रैग करो। Drag it a little bit. Yes, like this. सर ड्रैग करने से मेजरमेंट चेंज नहीं होता है? Yes, मेजरमेंट चेंज हुआ ना, तभी तो अभी हमें डिफाइन करना है ना। ओके, एंगल दे दिया हमने। अब ये एंगल कितना बोल रखा है उसने, कितना बोला है, 25 डिग्री। इसने क्या बोला है, 25 डिग्री एंगल, राइट? यस सर। यस। तो अगर ये वाली 25 डिग्री हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है? 180 minus 25 180 minus 25 कितना हो जाएगा? 155 155 नहीं, गलत बता रहे हो आप लोग, ज्यादा हो रहा है ये, गलत I मेजरमेंट। think that angle is not given. हाँ, मेजरमेंट, यस, The मेजरमेंट angle is measured from the vertical axis. yes, the angle it is given is not from horizontal axis, actually it It's is from from the vertical axis. vertical axis. Look at the arrow, right? 25 degree from the vertical axis. So measure it from the vertical axis. Delete this angle and drag your geometry again. Drag your geometry and give the angular distance from the vertical axis. Okay, from the vertical axis, how much it will be, zoom it out, then you will see. Okay, now
Okay, can anybody tell me the calculation? How much will it be? Can anybody tell me the calculation? 65 sir, horizontal axis. Yeah, it is 25 and this will be 180. How much will it 180 be? plus 25. Yes, can anybody tell me how much will it be? 205. 205. 200? 205. Clear? Like this. तो अब आपको दिख रहा होगा ये ज्योमेट्री जो है completely क्या हो गई? Converted into your blue color, right? That means it is completely defined now. Half portion clear हो गया? Half portion जैसे ही आपने बना लिया, अब आपको क्या करना है? Next half portion बनाना है. Next half portion. अब आप इसी तरह नेक्स्ट हाफ पोर्शन ड्रॉ करोगे. जब आप नेक्स्ट हाफ पोर्शन ड्रॉ करोगे, उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद क्या करना है? आपको दिख रहा होगा ये जो लाइंस आ रही हैं, आर्क जो है आपका सर्कुलर, ये आर्क बड़ा वाला, और अंदर में एक सर्कल है पहले. तो ये जो आपकी सर्कुलर आर्क आ रही है, उसमें कुछ लाइन बनी हुई है, 2 लाइंस बनी हुई हैं. तो ये 2 लाइन बना लेते हैं हम लोग. कितनी लेंथ की है? 11 की. तो 2 लाइंस बना लो. एक लाइन लो यहाँ से, इस पॉइंट से वर्टिकल लाइन, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 11. तो आप इसकी डायमेंशन दीजिए. कितनी? V12 कितना हो जाएगा? 11 mm. 11 mm इस तरह से. तो एक लाइन बना दी मैंने. इसी तरह दूसरी लाइन भी आपको यहाँ पे बनानी है. तो उससे पहले आप अपनी पूरी ज्योमेट्री यहाँ पे ड्रॉ करो. ये पूरी ज्योमेट्री आप यहाँ ड्रॉ करो. ठीक है? तो पूरी ज्योमेट्री ड्रॉ करने के लिए सेलेक्ट योर पॉलीलाइन, start drawing from here and draw it like this that I have did. Horizontal line again, then again an angular line, then again an horizontal line, and leave it here, open end. Now give it the dimension. Give it the dimension. How much dimension will it be? H3, H13. H13 will be what? 50. Okay, and give the dimension this one. How much will be? V14. How much will it be? 45. 45. Now this angular dimension as well, but before that give the dimension, vertical dimension, from this point, from this line to this line. How much will it be? V15. Select the V15. It will be 20. Got it? So you have fixed every point. Now look at the geometry. This point is at 35 unit from center line. This point is at 35 unit from center line. This point, select the horizontal distance, select this point, and from this horizontal axis, vertical axis, H16, how much will it be? 35. So H16 will be 35. Now how much will the vertical axis, how much will this point from this vertical axis, how much will it be? 15. Agree everyone? Horizontal distance from this axis to this point will be 15. H17 will be how much? 15. 15. And then again draw a simple line from here to somewhere around here and give the dimension accordingly. Give the dimension accordingly. V18. Look at V18 and give the dimension as 11. Okay, now you have why not you copy it, or why not you mirror this thing here? So there's 2 reasons. The first one is that I have not discussed about the mirror command yet, mirroring an object or copying an object. Okay, that's why I drawn it manually. And there's another problem is that if I mirror this object, this 1/2 part to this 1/2 part, you can see that the dimension is not symmetrical. It is here 40 and here it is 35. That's why we cannot copy or mirror this one to here.
बिकॉज जैसे ही आप मिरर कर दोगे तो आप एक तरफ की डायमेंशन को 35 करोगे, दूसरी तरफ भी 35 हो जाएगी। एक तरफ वापस 40 करोगे तो दूसरी तरफ भी वापस 40 हो जाएगी। मिरर के साथ ये प्रॉब्लम है, तो इसीलिए नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप अगर देखोगे तो एक सर्कुलर आर्क है, ये एक सर्कुलर आर्क है आपका। तो मैंने आपको आर्क क्रिएट करना बताया था 3 पॉइंट से। मैंने आपको 3 पॉइंट आर्क क्रिएट करना बताया था। आर्क बाय 3 पॉइंट, राइट? Select your arc, select your first point, select your second point, and then create your arc like this. Okay? तो ये जो आर्क क्रिएट हुआ इस तरह से, ठीक है? या तो आप ऐसे क्रिएट कर लो, ओवर डिफाइन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आर्क जो है इसके साथ इसकी ज्योमेट्री को क्या कर रहा है, चेंज करने की कोशिश कर रहा है, राइट? तो इसीलिए ये ओवर डिफाइंड हो रहा है। तो क्या करेंगे आप, कोई एक डायमेंशन देने से पहले आप क्या करेंगे, ये जो H15 और H16 है, कोई एक डायमेंशन को डिलीट कर देंगे, तो ये आर्क ओवर डिफाइंड से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने दो डायमेंशन दे रखी है यहाँ पे, H15 भी H16 भी, गॉट इट? और जब आर्क क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद क्या बनाना है, एक क्या बनाना है, सर्कल। और सर्कल की सेंटर की लेंथ कितनी दे दोगे, इस लाइन से 11 mm। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक सर्कल लो, एक सर्कल बनाओ वर्टिकल एक्सिस पे इस तरह से। सर्कल की डाया आपको कितनी रखनी है, डायमेंशन सर्कल की डायमेंशन कितनी है, D19 16 mm। Give the dimension 16 mm like this, and vertical distance of this circle from this point to this line is how much? How much this is? What is this? V20? 11. Yes, so V20, give the value of V20 as 11 mm. Can you see the circle is now highlighted in blue color? Yes, sir. Yes, sir. Exactly. So this is how you can design. Now this geometry is fixed, I guess. Yeah, one more thing. This angle I have not given the angle, right? Yes. So give the angular dimension as well. Angular dimension from this line to this axis. How much will it be? Look at the calculation. Look at the calculation from where it is calculating. Okay. This one it is calculating, this one. So if it is 25, then how much will the whole of 360 minus 25? 360 minus 335. Yes. So how much it will be? 335. And you can see it is around 335. It is 336. So we will change it to 335 precisely. So this is how the geometry as now is fixed, right? It is now fixed. So to bring an arc here, to bring an arc, what you have to do is you have to delete H4 or H16. Delete any one of them and draw the arc. Then it will be created, right? Because this H4 and H16 is what? Technically, this H4 and H16 is what? Radius of the arc, right? Agree with me? Yes, H4 sir. H16 जो है क्या दिखा रहा है? आर्क की रेडियस दिखा रहा है। तो मैंने आपको कल दिखाया था ना, किसी भी एक ज्योमेट्री, जैसे कि मैंने ये सर्कल बनाया है, मैंने ऑलरेडी डायमीटर दे रखा है। अगर मैं इसमें एक और डायमेंशन दे देता हूँ, रेडियस देने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखोगे क्या बोल रहा है, ये ओवर कंस्ट्रेंट बता रहा है। दिख रहा है, लाल हो गई ज्योमेट्री, है ना, रेड। तो इसीलिए आप एक ज्योमेट्री में दो डायमेंशन नहीं दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो दोनों डायमेंशन दे दिए H4 एंड H16, वो गलत है। दैट्स वाई इसमें से किसी एक को आप डिलीट करो और 3 पॉइंट आर्क क्रिएट करो। इससे क्या होगा, ज्योमेट्री कंप्लीटली क्या हो जाएगी, डिफाइंड हो जाएगी। गॉट इट गाइस? Yes, sir. Got the geometry? Yes, sir. Yes. Anyone of you have any sort of problem related to anything? Hello, sir. Yes. Hello, sir. Sir, can I remove all the dimensions line? You want to remove the dimensions line? Yes, sir, all the dimension line, so that I can easily see my image only, my drawing only. But first of all, why do you want to delete the dimension?
Just to see my drawing. तो जब आपको सिर्फ ड्राइंग देखनी है तो डायमेंशन देना ही नहीं चाहिए, राइट? But No, till sir, now you cannot delete your dimensions, okay? You cannot hide your dimensions. I'm not telling to delete. I'm telling to hide it. Yes, you cannot do that right now. Sir, Yes, tell me. sir, can we replace H13 V14 like this entity in the value? V13 मतलब कि जो H V1 V2 जो दिया हुआ है उसमें हम वहाँ पे वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं जितना उसका मेजरमेंट है। ये जो मेजरमेंट है यहाँ पे, यस सर। हाँ, तो इसमें क्या करना चाह रहे हैं आप? तो जैसे फिगर में V2 V5 ऐसे दिया है ना, तो वहाँ पे जहाँ पे V2 लिखा हुआ है वहाँ पे उसका मेजरमेंट लिखा रहे। अच्छा, you want to change the naming of this? No sir. So yeah. Hello. Excuse me sir. हेलो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मतलब वहाँ पे V2 दिया हुआ वहाँ पे जैसे V2 10 सेंटीमीटर है ना, ये V2 की जगह आप चारों डायमेंशन आ जाए, यही चाह रहे हो ना आप? न्यूमेरिकल नहीं, वो यहाँ पे एब्रीविएशन ही आएगा। नहीं, ये यहाँ पे एब्रीविएशन ही आएगा। ये इस इंटरफेस की सबसे खास बात है, यहाँ पे सिर्फ एब्रीविएशन आएगा, यहाँ पे सिंबल्स आएंगे। डायमेंशंस आप यहाँ पे नहीं, यहाँ आपको डायमेंशन डिटेल्स में जाके दिखाना होगा। सर यही डाउट था कि मतलब यहाँ से थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा सा ये ऑटोकैड वगैरह सॉफ्टवेयर से यहाँ पे डिजाइनिंग डिफरेंट है, थोड़ा सा डिनोट करना किसी चीज को, Sir, that is a little bit different. Yes sir, when we go to the print preview, in print preview it also shows V1 V18. It doesn't show numerical value. Then how to interpret the dimensions, sir? you have to mention the all the values accordingly. Okay, you have to mention these values accordingly. You have to mention these one accordingly, this abbreviation. Excuse me sir. Yes सर मेरे में सर ये लेफ्ट साइड में डिटेल भी शो नहीं कर रहा है, जब डायमेंशन मैं ले रहा हूँ लेकिन शो नहीं कर रहा है सर कितना लेना है। Okay, do one thing, go to your view in this design modeler, click on the view button, go to your windows and say reset layout. Thank you sir. Reset your layout and see that whether the problem is solved or not. Okay, anything else you guys want to ask? Otherwise I will move forward. Yes sir. Hello. Yes, tell me. जब लाइन लेते हैं उसी समय डायमेंशन नहीं दे सकते हैं? Yes, जिस समय आप लाइन बना रहे हो उस समय ही डायमेंशन दे के चलो साथ ही साथ। Okay? तो वो कैसे करेंगे, एक बार बता दे। साइड में किया तो था, जब मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लिया फिर वर्टिकल लाइन लिया तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन की डिस्टेंस दे दी फिर वर्टिकल की दे दी। इसी तरह से आप भी करोगे। सर वहाँ पे सर व्यू में गए, वहाँ पे सिर्फ सेक्शन प्लेन दिख रहा है सर, वहाँ पे ऑप्शन नहीं है वो वाला रिसेट का। व्यू में जब जाओगे तो नीचे आओ, व्यू के अंदर एकदम नीचे विंडोज में। यस सर गए सर, सेक्शन प्लेन है सर, रिसेट लेआउट नहीं है सर। आप डिजाइन मॉडलर में ही हो? यस सर। यू आर इन द डिजाइन मॉडलर, तो आपकी 2020 वर्जन में हो सकता है व्यू को यहाँ से उठा के कहीं और, रिसेट को कहीं और रख दिया होगा, मे बी। So you have to check it, or otherwise I will check it. Okay, I will check it, but I have right now this is 2015 version, so okay, it sir, is right here. Yeah, check it. ये reset layout कहीं और होगा, किसी और रिबन में होगा, चेक करो आप, ठीक है? टूल्स में चेक करो या कहीं और चेक करो, बट होगा जरूर, है ना, रीसेट करने का। Got it, guys?
ओके आगे बढ़ें। आप लोगों ने और कुछ पूछना है? No, sir. Okay, good. So guys, do one thing. We will meet after 15 minutes, right? We will meet after 15 minutes. Be Okay, here, sir. be present here at till 11:45. Okay, be present here. 5 minutes of gaps will be there so that you guys can rejoin. Go have some snacks, whatever you want, drink some water, and we will meet at 11:45 sharply. Okay, we will start. Okay, sir.